Hello the aspirants of UGC NET English Literature. Guys, guess what in today's video I have for you all. Guys, in today's video we are going to discuss top 200 Indian English literature for UGC NET English exam. Now guys, this video will gives you direct question in your examination and trust this video because these lists will secure your more than 100 marks in your examination. Now guys, I'm going to start this video. Before starting this, I would like to tell you, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and like this video. And if you really want the notes in the PDF form, then you will have to join the membership of my channel. चलिए start करते हैं. First we have Rajmohan's Wife. This is by Bankim Chandra Chatterjee, published 1864. Second, we have Anand Mat, that is by Bankim Chandra Chatterjee, 1882. Right now, I'm going to give you little bit about the Bankim Chandra Chatterjee. So friends, you must know that timeline of Bankim Chandra Chatterjee. From this also you will get the question, direct question, according to the टाइमलाइन ऑफ मेजर इंडियन इंग्लिश राइटर्स आपसे पूछ लिया जाता है एंड इंक्लूडिंग बंकिम चंद्र चैटर्जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर टू. राइट नाउ 1838 टू 1894 दिस इज द टाइमलाइन ऑफ बंकिम चंद्र चैटर्जी. इंडियन नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं एंड जर्नलिस्ट हैं. बंगाली एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ही रॉट, right? Or he considered the father of the Indian novel, one of the first writer to popularize the novel in Indian languages. Now please keep in your mind. Let's move on the ahead. We have more list. Okay, चलिए next we have Gitanjali, Rabindranath Tagore, 1912. This also have been asked in your previous papers. Chitra, that is by Rabindranath Tagore, 1914. The Home and the World, that is again by Rabindranath Tagore, 1916. Now I'm telling you the facts regarding Rabindranath Tagore. So friends, you must know that Rabindranath Tagore won the Nobel Prize in Literature in 1913. 1913 में इनको Nobel Prize Literature में मिला था for his book of poems Gitanjali, right? Gitanjali, that was 1912 publication. Like उसको आप song offering भी बोल सकते हो, making him the first non-European to win the award, right? Let's move on the ahead. Swami and Friends, this is the first novel. In fact, that part of trilogy, this is the first part by R.K. Narayan, 1935. Untouchable, Mulk Raj Anand, 1935. Kuli, Mulk Raj Anand, 1936. The Bachelor of Arts, R.K. Narayan, 1937. Two Leaves and a Bird, Mulk Raj Anand, 1937. Train to Pakistan, Khushwant Singh, 1956. Next, we have Waiting for the Mahatma, R.K. Narayan, 1955. The English Teacher, R.K. Narayan, 1945. The Serpent and the Rope, Raja Rao, 1960. The Cat and Shakespeare, Raja Rao, 1965. And number 16, we have an autobiography of an unknown Indian, निराज सी चौधरी, 1951. These all texts जो अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, trust me friends, repeat it in your examination and circulate it. If you have done this complete list for your upcoming UGC NET English exam, definitely you win your GRF as well. You just qualify your UGC NET English exam if you really revise all the texts those I include in this list of mine. Let's move on the ahead. फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन एंड अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊँगी एज आई यूजुअली मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपके साथ फैक्ट डिस्कस करती हूँ ऑफ पर्टिकुलर टेक्स्ट, तो मुझे बहुत सारा टाइम लग जाएगा. दैट्स वाई आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू दिस कंप्लीट लिस्ट. और इसमें ऐसा कोई भी टेक्स्ट नहीं है जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो इन द प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ माइंड. सो प्लीज़ adjust it. Now friends, number 17 we have the Guide, R.K. Narayan, 1958. The Sword and the Sickle, Mulk Raj Anand, 1942. The Big Hurt, Mulk Raj Anand, 1945. The Shadow Lines by Amitabh Ghosh, 1988. Now this is most important novel by Amitabh Ghosh. Amitabh Ghosh most important है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इनके वर्क्स इन क्रोनोलॉजी मैनर में आपसे पूछे जाते हैं. नाउ प्लीज जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव मिडनाइट चिल्ड्रन. दिस इज सलमान रश्दी, 1981 publication. Shame, again Salman Rushdie, 1983. The Satanic Wars, Salman Rushdie, 1988. The Circle of Reason, this is by Amitabh Ghosh, 1986. The Calcutta Crimson, Amitabh Ghosh, 1996. And next we have Sea of Poppies, Amitabh Ghosh, 2008.
Now let's move on the ahead. 27 The God of Small Things, written by Arundhati Roy 1997, In Custody by Anita Desai 1984, Clear Light of the Day Anita Desai 1980, Fire on the Mountain by Anita Desai 1977, Cry the Peacock Anita Desai 1963, That Long Silence, this is also important one और इसका कैरेक्टर भी important है, शशि देशपांडे का 1988 publication, Small Remedies शशि देशपांडे 2000 publication, Halabulu in the Gawa Orchard. This is by Kiran Desai, the daughter of Anita Desai, published 1998. Now the next we have The Inheritance of Loss. This is by Kiran Desai, 2006 publication. The White Tiger, Arvind Adiga, most important. नाउ फ्रेंड्स द वाइट टाइगर मेन बुकर प्राइज विनिंग वर्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बलराम हलवाई द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन योर माइंड. नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड. 37 बिटवीन द असैसिनेशन, दिस इज बाय अरविंद अडीगा, अगेन 2009 पब्लिकेशन. इंटरप्रेटर मेलोडीज जुम्पा लहरी 1999. फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई 1999. A Suitable Boy by Vikram Seth 1993. Now this is also most important. A Fine Balance by Rohintam Mistry 1995. The Lowland Jhumpa Lahiri 2013. Unaccustomed Earth Jhumpa Lahiri 2008. Serious Man Manu Joseph 2010. Now friends, I'm telling you these all text in different format. You really just see in your examination, like matching question, chronology questions में आपको देखने मिल जाएंगे. Same or direct question if you really want from this, you definitely get in your examination. आपको सिर्फ इन्हें रिवीजन देना है, twice and thrice that much you can. अगर आप इनको रिवाइज कर लेते हैं, we have no more time, last days during our examination, few days we have only, so just रिवाइज ऑल दी टेक्स्ट जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. अगर अभी तक आपने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है, देन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स 120 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं इन योर एग्जामिनेशन. अगर आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाइक इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट लिस्ट, कंप्लीट टेक्स्ट जो आपके सर्कुलेट होते हैं एग्जामिनेशन में, एज वेल ब्रिटिश लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर एंड दी कैनेडियन एंड जर्मन लिटरेचर के इंपॉर्टेंट 10 और 20 वर्क्स अगर आप देख लेते हैं, इनफैक्ट यू जस्ट क्रैम दैम जस्ट लाइक अ पैरेट, डेफिनेटली यू जस्ट विन योर GRF. ओके, लेट्स मूव ऑन द अहेड. Next we have The Illicit Happiness of Other People. This is by Manu Joseph, 2012 publication. Next number 46 we have The Ministry of Utmost Happiness. This is by Arundhati Roy, most important 2017 publication. Now Tomb of Sand, this is by Gitanjali Shri. English translation इसका 221 में हुआ था. This also have been asked in your examination in previous years. Now Immigrant, that is by Alfred Bob, commonly miscredited as Manju Kapoor. Okay, 2008. Now English August, Upmanya Chatterjee, most important 1988. The Hungry Tide by Amitabh Ghosh, 2004. Now let's discuss number 51, Difficult Daughters, Manju Kapoor, right? This is published 1998. तो फ्रेंड्स ये जो मंजू कपूर हैं आपकी इंडियन नॉवलिस्ट हैं. शी इज़ एन इंडियन नॉवलिस्ट और शी अक्सर इफ़ आई टॉक अबाउट मंजू कपूर, तो आपको देखने मिलेगा शी कॉल्ड द मॉडर्न वॉइस ऑफ इंडियन वेमेन, मॉडर्न वॉइस ऑफ इंडियन वेमेन, एंड इज़ नॉन फॉर फोकसिंग ऑन थीम्स लाइक फैमिली, जेंडर, टाइप्स ऑफ थीम आपको इनकी नॉवेल्स में मिल जाएंगे. एज वेल शी टॉक्स अबाउट द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, राइट. सो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ से मंजू कपूर से आपको फुल्ली चांसेस है दे कैन आस्क यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड. नाउ नेक्स्ट वी हैव होम. दिस इज अगेन बाय मंजू कपूर, 2006. कस्टडी मंजू कपूर, 2011. द ग्लास पैलेस, दिस इज बाय अमिताभ घोष, 2000 publication. River of Smoke, this is again by Amitabh Ghosh, 2011. Now the Flood of Fire, this is again by Amitabh Ghosh, 2015. The Iron Man and the Indian, Amitabh Ghosh, 2002.
फ्रेंड्स ये इमाम है, राइट, इमाम एंड द इंडियन, ये बेसिकली ऐसे कलेक्शन है नॉन फिक्शन आपके अमिताभ घोष का, दैट वाज पब्लिश 2002। और इसके अंदर इन्होंने ही जस्ट रॉट ओवर द ईयर्स, इन्होंने यहाँ इसमें एसेज इंक्लूड किए हैं, लाइक ट्रैवल एसेज, पर्सनल नैरेटिव्स, रिफ्लेक्शन, राइट, दीज टाइप्स ऑफ आपको मिल जाएंगे इसमें एसेस। और इसका जो टाइटल है द इमाम एंड द इंडियन, ये कहीं ना कहीं रिकाउंट्स कर रहा है एक्सपीरियंस इन इजिप्ट वेयर घोष एनकाउंटर एंड इमाम। इमाम का मतलब है यहाँ पे एक मुस्लिम, अ मुस्लिम रिलीजियस टीचर, जिनसे इनका एनकाउंटर हुआ था व्हेन ही वेंट टू इजिप्ट। नाउ प्लीज कीप इन योर माइंड, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एग्जामिनेशन में, आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, सो जस्ट कीप इन योर माइंड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द अहेड। लव एंड लॉजिंग इन बॉम्बे, दिस इज बाय विक्रम चंद्र 1997। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, दिस इज बाय विक्रम चंद्र अगेन 1995। द डेथ ऑफ विष्णु, this is by Manil Suri 2001. The Age of Shiva, Manil Suri 2008. The City of Devi, Manil Suri 2013. These types of modern Indian English text आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम वेयर, सो प्लीज जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो। Now next we have Narcopolisis. This is by Jeet Thyal 2012. The Book of Chocolate Sands, this is by Jeet Thyal 2017. The Alchemy of Desire, this is by Tarun Tejpal 2005. Vanity Bug, Anis Salim 2013. The Blind Lady's Descendants, this is by Annie Salim 2014. The Patna Manual of Style, this is by Siddharth Chaudhary 2015. Okay, now friends, let's discuss brief about the Patna Manual of Style. This is by Siddharth Chaudhary. Now what is this? This is the collection of 9 interlinked short stories जो आपके सिद्धार्थ चौधरी ने लिखा है, राइट, दैट रीड लाइक अ नॉवल, जो सेंटर्ड है अराउंड, राइट, हृदय ठाकुर करके एन एस्पायरिंग राइटर हैं, जिन पर इंस्पायर्ड है ये आपका। मैं आपको इसका बारे में रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, सो दैट यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली अबाउट द ऑथर? सो सिद्धार्थ चौधरी studied English at the Delhi University or has published multiple stories collection and novels including Diksha, right, at St. Martin's जो इनका 2002 में आया है, पटना रक कट करके इनका आया है, डे स्कॉलर करके आया है, द पटना मैनुअल ऑफ स्टाइल जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो ये सारे इनके वर्क्स हैं, ही जस्ट रोट ऑल दी थिंग्स। ये अभी आपके अलाइव हैं सिद्धार्थ चौधरी, 1974 बेसिकली ही बिलोंग टू पटना, right? Now please just keep in your mind, and of course he shortlisted for the Man Asian Literary Prize in 2009. That's why we need to read his fiction जो फोकस कर रहे हैं कहीं ना कहीं on Mumbai, Delhi, socio culture and so and so forth, right? चलिए next we have The Lives of Others. This is by Neil Mukherjee 2014. The Radiance of Ashes, Cyrus Mistry 2005. Chronicle of a Corpse Bearer. This is by Cyrus Mistry 2013. The White Castle, Gopi Chandra Narag 1981. No Present Please, Jayant Kekni translated. This was in 2017. Now please keep in mind The Goat Thief, परम्यूनल मुर्गन, जिसे ट्रांसलेट किया था 2017 में, वन पार्ट विमन, दिस इज परम्यूनल मुर्गम का है, ट्रांसलेटेड बाय 2013. नाउ पुनाची और द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक गॉड, दिस इज बाय अगेन मुर्गन 2016. तो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू डिस्कस अबाउट द परम्यूनल मुर्गन। ये जो आपके पैरोमल, सॉरी, ठीक है, मुझे थोड़ा प्रोनाउंस होने में दिक्कत होती है कुछ वर्ड्स ना, लाइक पैरोमल जो मुर्गन है, जो अभी इनके जो हम टेक्स्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लाइक द गॉड थीफ, हु इज़ ही? नाउ ही इज़ तमिल राइटर, राइट, आपके नॉवलिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, पोइट हैं, 1966 इनका बर्थ ईयर है, ही इज़ प्रेजेंट नाउ। और इनका जो राइटिंग स्टाइल है, जो फर्स्ट ही राइट प्राइमरली इन तमिल, और इनके बहुत से वर्क्स हैं जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुके हैं, लाइक वन पार्ट विमन, राइट, एंड आपका पुनाची और द स्टोरी ऑफ ब्लैक गॉड, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो इनका एक क्या है, दिस वन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेयर इट इज़, वेयर हैज़ इट गॉन, या
76। सो गाइज ये जो इनका वर्क है ये एक्चुअली एलेगोरिकल नॉवल है जिसमें इन्होंने कास्ट, जेंडर और वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया है। इसके अलावा इन्होंने पायर करके लिखा है, सीजन्स ऑफ द पाम, दीज टाइप्स ऑफ वर्क, द स्टोरी ऑफ अ गॉड जो मैंने भी आपको बता दिया 2016 में इसका पब्लिकेशन है, द स्टोरी ऑफ द गॉड वेयर इट इज़, आई थिंक इट वॉज नॉट, हाँ ये वाला मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें लिस्ट में। तो इनका एक स्टोरी ऑफ गॉड करके भी वर्क है दैट वाज पब्लिश 2016। अ फेबल है जो लाइक नॉवल अबाउट रूरल लाइफ के बारे में, मतलब कास्ट और बिलोंगिंग्स के बारे में ही टॉक्स अबाउट इन हिज राइटिंग्स। आपको इन्हें अच्छे से रीड करके जाना है, इनफैक्ट आपको इनके वर्क्स देख के जाना है कि इन वट काइंड ऑफ थीम्स यू जस्ट चेकड आउट इन दी वर्क्स ऑफ पेरुमल मुरुगन। नाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, देखिए ये जो राइटर्स हैं ना, अभी आपसे इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे एग्जामिनर में, दे आर जस्ट आस्क यू ओनली द टाइटल एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड दे कैन आस्क द ऑथर इट सेल्फ। सो प्लीज़ जस्ट बी प्रिपेयर, जितने भी मैं टेक्स्ट यहाँ पर इंक्लूड की हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स मूव ऑन दी अहेड। लेट्स चेक 77 पेयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पेरुमल मुरुगन का 2014 पब्लिकेशन है। द आर पास्ट मिडनाइट, दिस इज बाय सलमा 2009। वुमेन ड्रीमिंग, दिस इज अगेन बाय सलमा 2020। व्हेन आई हिट यू और अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ, मीना कंदस्वामी का है 2017 पब्लिकेशन। एक्सक्विजिट कैडावर्स, दिस इज़ अगेन बाय मीना कंदस्वामी 2019। ये आपकी मीना कंदस्वामी कौन है ये फ्रेंड्स, ये आपकी कंटेम्प्रेरी इंडियन पोइट है। नाउ जितनी भी मैं अभी आपको टेक्स्ट यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ लिस्ट में इंक्लूड किए, दीज आर एसोसिएटेड विद द कंटेम्प्रेरी इंडियन पोइट और नॉवलिस्ट के थ्रू लिखे गए, लाइक एक्टिविस्ट के थ्रू। मीना कंदस्वामी 1984, ये भी आपकी एक पोइट है, नॉवलिस्ट हैं, ट्रांसलेटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, और ये चेन्नई और इंडिया से बिलोंग करती हैं। Primarily she wrote in Tamil or English. Now she actually talks about like caste, annihilation, gender, politics and social justice type of topics और themes को ये डिस्कस करती हैं अपने वर्क्स में। इनके जो वर्क्स हैं लाइक आपको पोएट्रीज मिल जाएगी और नॉवेल्स मिल जाएंगी, जो भी मैं आपके साथ, द गिप्सी गॉडेस, इफ़ यू हियर दिस पर्टिकुलर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नॉवल है जो इनकी इंस्पायर्ड थी किससे, कैल्विमानी करके एक नेम है जिससे ये इंस्पायर्ड थी, और नॉवल इनकी द गिप्सी गॉडेस, और एग्जाम में आपसे पूछी भी जा चुकी है। नाउ प्लीज़ इन कीप इन योर माइंड। नाउ नेक्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ जैस्मिन कंट्री, दिस इज़ बाय शर्निया मैनी वन, ठीक है, 2018। ये आपके सभी कंटेम्प्रेरी जितने भी आपके कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोइट हैं उनके टाइटल्स हैं। इनसे आप मुझे पता है फैमिलियर नहीं होंगे, बट ट्रस्ट मी दीज आर रियली हैव आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इनमें से बहुत से ऐसे टेक्स्ट हैं जो आपसे पूछे जा चुके हैं एंड यू नेवर नो अबाउट इट, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। एंड नेक्स्ट वी हैव लैटिट्यूड्स ऑफ लॉन्जिंग्स, दिस इज़ बाय शुभांगी स्वरूप, published 2018. Girls Burn Brighter, Shobha Rao 2018. Up Burning, this is by Megha, okay, Majumdar, this is 2020 publication. And Obedient Father, Akhil Sharma 2000. Family Life, Akhil Sharma 2014. All the Lives We Never Lived, this is by Anuradha Roy 2018. The Folded Earth by Anuradha Roy 2011. Sleeping on Jupiter, this is again by Anuradha Roy. The Body Myth, Reena Mukherjee 2019. Boast and On Land, this is by Janice Parriott 2012. The Nine Chambered Heart, this is by Janice Parriott 2017. The Forest of Enchantment, this is by Chitra Banerjee, राइट। ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है आपका 2019 पब्लिकेशन। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, दिस इज अगेन बाय चित्रा बैनर्जी 2008 पब्लिकेशन। नेक्स्ट वी हैव बिफोर वी विजिट द गॉडेस, दिस इज अगेन बाय चित्रा बैनर्जी। अरेंज मैरिजेस, चित्रा बैनर्जी। द लास्ट क्वीन, चित्रा बैनर्जी। एंड सरस्वती पार्क, अंजलि जोसेफ, ओके। एंड अनदर कंट्री, दिस इज अगेन बाय अंजलि जोसेफ। लेट्स हैव अ लुक 101. The Painter of Sign, R.K. Narayan 1976. The World of Nagraj, R.K. Narayan 1990. Morning Face, Mulk Raj Anand 1968. नाउ फ्रेंड्स, ये जो आपका मॉर्निंग फेस है इंपॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है आपके मुल्क राज आनंद का। आई हैव टोल्ड मैनी टाइम इन माई प्रीवियस वीडियो वेयर आई डिस्कस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर अबाउट मॉर्निंग फेस। ये आपका साहित्य अकादमी अवार्ड है, अवार्ड विनिंग है 1968 एंड ये आपका पार्ट है फ्रेंड्स ऑफ अ 7 वॉल्यूम ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज ऑफ आनंद
फॉलो द नरेटर, जिसमें किसको फॉलो किया है नरेटर, कृष्ण चंद्र आज़ाद को, थ्रो द टर्बुलेंट टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइक इंडिपेंडेंस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल और पार्टीशन के टाइम की. नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू रियली नो अबाउट दिस पर्टिकुलर. तो फ्रेंड्स, ये जो इसका ऑटोबायोग्राफिकल साइकिल था इनका 7 वॉल्यूम्स का, ही ओनली कंप्लीटेड ओनली 4, सिर्फ 4 थी जो इन्होंने कंप्लीट की थी. एंड जिसका नाम था 7 समर्स 1951, मॉर्निंग फेस 1968, कन्फेशन ऑफ अ लवर 1976 एंड द बबल 1984. दीज ओनली 4 ही कंप्लीटेड, अदरवाइज रिमेनिंग 3 जो थी मोर वर नेवर कंप्लीटेड बिकॉज ही गॉट डाई, दैट्स वाई. Next we have Private Life of an Indian Prince Mulk Raj Anand 1953, Kanthapura most important 1938, repeated or NFT for exam point of view, On the Ganga Ghat Raja Rao, Voice in the City Anita Desai 1965, Bye Bye Blackboard Anita Desai 1971, Bum Gardeners Bombay Anita Desai 1988, Where Shall We Go This Summer Anita Desai 1975, The Village by the Sea अनीता देसाई 1982. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है एंड स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं दे कन्फ्यूज्ड बाय द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट. ओके, द डार्क होल्ड्स नो टेरर, दिस इज बाय शशि देशपांडे 1980 पब्लिकेशन. रूट्स एंड शेडोज बाय शशि देशपांडे 1983. कम अप एंड बी डेड अगेन शशि देशपांडे 1983. शशि देशपांडे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. द ब्लाइंडिंग वाइन शशि देशपांडे 1992. मूविंग ऑन again Shashi Deshpande 2004. And guys, the last song of Dusk, this is by Siddharth Dhawanand, right? Siddharth धनवंत, इनसे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल चुका है, सिद्धार्थ धनवंत से. नाउ प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल्सो. 2004 पब्लिकेशन है. माई नेम इज़ रेड, ऑर्फन पामुक का है ये. एक्चुअली नॉट इंडियन, रिमूव्ड आप बोल सकते हो इसको, मैंने गलती से यहाँ पे एड ऑन कर दिया है ये. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, द कंपनी ऑफ विमेन, दिस इज़ बाय खुशवंत सिंह 1999. दिल्ली, ये एक नॉवल है खुशवंत सिंह का 1990. ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, दिस इज़ बाय खुशवंत सिंह 2002. खुशवंत सिंह आपके पार्टीशन इनकी नॉवल है द, क्या नाम है उसका, व्हाट वाज द नेम, 1956 पब्लिकेशन अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें मंजू मांजरा करके था. मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा. द सनसेट क्लब, ये खुशवंत सिंह का है 2010. द रूम ऑफ वंस ऑन, ये रस्किन बॉन्ड का, रूफ है फ्रेंड्स, ये द रूम ऑन द रूफ, राइट, ये रस्किन बॉन्ड का 1956 है. और वैग्रेंट्स इन द वैली रस्किन बॉन्ड का 1987. दिल्ली इज़ नॉट फार, ये भी रस्किन बॉन्ड का 1994 है. सी फ्रेंड, दिस इज़ द बुक द रूम ऑफ ऑन द रूफ, ये आपका रस्किन बॉन्ड का है. तो मैंने इसको पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट अच्छी स्टोरी है, लेकिन जिस समय मैंने इसको पढ़ा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम, तो उस वक्त इट वाज नॉट इन माय एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन नहीं आया था. सो दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ, कन्फ्यूज मत होना. द रूम ऑन द रूफ, ये रस्किन बॉन्ड का 1956 पब्लिकेशन है. नाउ लेट्स मूव ऑन द अहेड. Now 2127, A Flight of Pigeons. This is again by Ruskin Bond. Our trees still grow in Dehra. Ruskin Bond 1991. The Zoya Factor. This is by Anuja Chauhan 2008. Battle for Bitora. This is Anuja Chauhan. Important है friends, trust me. The House of Blue Mangoes. This is David Davedar, right? The Solitude of Emperor. David Davedar का है. Siddharth Gigu. This is by The Garden of Solitude. No God in Sight. Alfar Teerwala 2005. Assassination of Indira Gandhi, this is by Rukun Advani 1992. Cold, this is by Kiran Nagarkar 1997. Ravan and ED, this is by Kiran again Nagarkar 1994. God's Little Soldier, this is again by Kiran. The Extracts, किरण का है. प्रिजनर आपका ओमर शाहिद हामिद 2013. द स्टोरी दैट मस्ट नॉट बी टोल्ड, दिस इज बाय कावेरी नबीसम 2010, राइट, नैम्बीसन, कावेरी नैम्बीसन, राइट. द सेंट ऑफ पेपर, दिस इज अगेन बाय कावेरी. मिस्ट्रेस अनीता नेयर, अनीता नेयर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2005 में. लेडीज कॉप अनीता नेयर. द बैटर मैन अगेन अनीता नेयर. एड्रेस कीपर ऑफ द लाइट अनीता नेयर का है. ईटिंग वैप्स अनीता नेयर. देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है. इनको अगर आप वंस और ट्वाइस देख लेंगे ना बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे. और अगर एग्जाम में आपको मिलेगा सेम टू सेम क्वेश्चन, तो आप इजीली उसको आंसर कर देंगे. एटलीस्ट आपको ये तो नहीं लगेगा कि आई हैव नेवर स्टडीड अबाउट, यू जस्ट फैमिलियर विद द टेक्स्ट. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव
द सी लाइज अहेड, इंतज़ार हुसैन, जिसे ट्रांसलेट किया है 2005 में। द विल्ड सूट कलेक्टेड पोएम्स आगा शाहिद अली का 2009। द बिलव्ड विटनेस अगेन आगा शाहिद अली 1992, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 153 द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस आगा शाहिद अली 1997। जैजुरी अरुण कोलाटकर 1976, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी 7 जैन को यूजीसी नेट का लास्ट एग्जाम था, वहाँ पे आपसे पूछा गया था proper question in your examination regarding Jajuri. Okay, collected poems in English Arun Kolatkar 2010। Rough Passage केकी एंड दारूवाला इंपॉर्टेंट है 1977 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द कीपर ऑफ द डेड केकी एंड दारूवाला 1982। द येलो ब्रिक रोड हॉशिंग मर्चेंट 2005। लव एंड वॉर इन द जंगल जीव पटेल का है, ये आपका 1984 इंपॉर्टेंट है। पोएम्स निसीम एजेकिल का 1965। हाइमन इन द डार्कनेस निसीम एजेकिल 1976। लेटर डे जाल्म निसीम एजेकिल 1982। रिलेशनशिप जयंत महापात्रा 1980s, राइट 1980 में ये आपका है रिलेशनशिप। अच्छा, इसको लेकर ना एक कन्फ्यूज़न था मेरा पास्ट वीडियोस में, जहाँ पे मैं आपके साथ मॉक टेस्ट शेयर कर रही थी। तो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर टॉक्स मी अबाउट कि जो आपका रिलेशनशिप था एंड अनदर इनका और था आपका जयंत महापात्र का, दैट वाज पोइट्री कलेक्शन। आई एम जस्ट नॉट डिसेंडेंट्स, नो नॉट डिसेंडेंट, दैट वाज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेंड्स। सी दिस वॉज द क्वेश्चन, द पोएम ऑबिचुअरी। ठीक है, दो ऑबिचुअरी जो आपका पोएम था ये स्ट्राइडर करके 1966, ये आपका मैं आपको बता दूँ ये तो A.K. रामानुज का था, राइट या तो फ्रेंड्स मैंने उस समय द स्ट्राइडर करके बोला था 1966। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि इनके थीम्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे टू ईच अदर। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द रिलेशंस, क्योंकि सेम नेम आया तो मुझे एकदम से याद आ गया। रिलेशंस जो आपका 1971 में पब्लिश हुआ था, दिस इज़ ऑल्सो द पोएट्री कलेक्शन बाय A.K. रामानुज एंड द स्ट्राइडर्स। लेकिन ऑबिचुअरी जो थी इट वॉज रिटन इन दिस, राइट रिलेशन में दैट वॉज रिटन। उसी का एक ये फेमस पोएम था जो डेथ ऑफ द पोएट्स के फादर पर लिखा गया था, इमोशनल सोशल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन को लेकर था। नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड, क्योंकि स्ट्राइडर में भी इनके जितना भी जो लिंक कर रहे थे एक दूसरे से द टॉपिक्स और द थीम्स ही टॉक्स अबाउट जो A.K. रामानुज, दैट्स वाई द कन्फ्यूजन मैड on that video of mine, so please just correct it, okay। जो मैंने मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस किया था इंडियन इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नाउ लेट्स कम बैक टू द अभी रिलेशनशिप, ये आपका किसका है, जयंत महापात्रा का 1980s, राइट। और रेन ऑफ राइट्स ये आपका जयंत महापात्रा 1976। लाइफ साइन जयंत महापात्रा 1983। एंड द नेक्स्ट वी हैव समर इन कलकत्ता कमला दास 1965। कमला दास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द डेसिडेंट्स दिस इज कमला दास 1967। नाउ लेट मी क्लियर फ्रेंड्स, सॉरी अगर मेरे को एक्चुअली याद आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और था जो मेरे से यहाँ पे आई मेड अ मिस्टेक देयर। यहाँ पूछा था आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएट्री कलेक्शन बाय कमला दास। नाउ समर इन कलकत्ता, अ टाइम टू चेंज, ये वाला आपका निसीम एजेकिल का है। प्लीज़ यहाँ पे मुझे फ्रेंड्स, मेरे को कई मेरे व्यूअर्स ने, इनफैक्ट द सब्सक्राइबर्स ऑफ माइन, उन्होंने मुझे नोट डाउन भी कराया था कॉमेंट्स के थ्रू, तो मैं अभी आपको बता भी रही हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं बेस्ड ऑन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, राइट। सो इनको आप प्लीज़ जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे ना डिसेडेंट्स जो है ऑल ऑफ अबव मैंने आंसर लगाया था बट दैट वाज रॉन्ग। समर इन कलकत्ता और डिसेडेंट्स ये आपके कमला दास के, क्योंकि अभी मैं यहाँ कमला दास को आपके साथ डिस्कस करी थी, दैट्स वाई सडनली मेरे माइंड में रिमाइंड हो गया तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, राइट। चलिए, कमला दास का हमारे पास माई स्टोरी, ये आपका 1976, ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी। अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट अगेन कमला दास। पद्मावती द हैरलोट एंड अदर स्टोरीज, ये आपका कमला दास का 1992 है। नॉवलिस्ट एज शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये आपके R.K. नारायण 1994। द महाभारत अ मॉडर्न रेंडरिंग, दिस इज वॉल्यूम 1 एंड 2, रमेश मेनन 2004 to 2006, राइट। ये क्या लिखा है आपका, यजनस सैनी द स्टोरी ऑफ द्रौपदी, ये आपका प्रतिभा रे 1984। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे मैचिंग्स में पूछे थे कैंसल्ड एग्जाम में, सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, इनको सीरियसली आपको रिवाइज करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने पहले नहीं पढ़ा है, ट्रस्ट में ये वही सारे टाइटल हैं जिसको आप रीड करके इन एग्जामिनेशन में ये बोलते हैं आई हैव नेवर स्टडीड अबाउट इट बिफोर, राइट। सो चलिए नेक्स्ट, द पैलेस ऑफ इल्यूजन, अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, रिपीट हुआ है अगेन, चित्रा बनर्जी का। नाउ
अजय यानी कि रोल ऑफ द डाइस, दिस इज आनंद नील कंटन, राइट। करन्स वाइफ द आउटकास्ट क्वीन, ये आपका कविता का है। द प्रेग्नेंट किंग, ये आपका देवादत्त पाटनिक का है, 2008 पब्लिकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन दी 9178, ये थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड हैं, मॉडरेट टू टफ आप बोल सकते हैं। जया एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द महाभारत, ये देवदत्त पाटनिक का है, 2010। सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण, ये आपके देवदत्त का है, राइट। महाभारत द इपिक एंड द नेशन, जी एंड देवी का है, 2021। आफ्टर कुरुक्षेत्र, ये आपका महाश्वेता देवी का है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 2005 में हुआ है। द्रौपदी शॉर्ट स्टोरी है ये महाश्वेता देवी का, जिसे ट्रांसलेशन जिसका स्पाइवेक ने क्या है क्या नाम है इनका, गायत्री स्पाइवेक, राइट, 1997 में। इंपॉर्टेंट है, जस्ट प्लीज रिवाइज्ड। मदर ऑफ 1084, ये आपका महाश्वेता देवी का है, जिसे ट्रांसलेट किया है 1973 में। दीज टेक्स्ट ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, डोंट थिंक और डोंट मिस कॉन्सेप्ट कि ये मैं कहाँ से आपको बोल रही हूँ, ये दीज आर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे आप इंक्लूड ही नहीं करते अपने रिविजन में, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट वी हैव ब्रीस्ट स्टोरीज, ये महाश्वेता देवी का है, जिसे ट्रांसलेट 1997 में किया है। नाउ अग्नि गर्भा, दिस इज महाश्वेता देवी, 1978। तमस भीष्म सहानी, दिस इज पार्टीशन नॉवल, 1974, एंड दिस इज अ वेरी बिग टाइटल, आई कांट रीड एक्चुअली। नेक्स्ट हैंग विमन, ये आपका KR मीरा का है, जिसका ट्रांसलेशन 2014 में हुआ है। और आराचार KR मीरा का है। द लेजेंड ऑफ पैनसम, ये आपका ममंग दाई, राइट, ब्लैक हिल ममंग दाई का है ये भी। सन ऑफ द थंडर क्लाउड, दिस इज ईस्टराइन कायर, ठीक है, ईस्टराइन अजीब सा नेम है ना इनका। बिटर वार्म वुड, दिस इज ये भी ईस्टराइन के क्री का है। और रेस्पेक्टेबल वुमन, ये आपका ये भी सेम केयर का है। द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज, अ वेन्यू केयर, ये भी वेन्यू केयर, ये ओके सेम है। द स्काई क्वीन, ये आपका तारा पटेल का है। नाउ द वुमन हु फॉरगॉट द इन्वेंट फेसबुक, ये निशा ने लिखा है, निशा सूजन। ईटिंग शुगर टेलिंग लाइज, आंचल मल्होत्रा। द बुक फर्स्ट वॉन्ट बी राइटिंग एंड अदर एसेज, ये आपका हरिंद कौर का है। एंड द लास्ट वन 2200, जो लास्ट टेक्स्ट है, द अनडूइंग डांस, दिस इज बाय श्री विद्या नटराजन, दिस इज बाय or published 2007. Now I'm just going to give you brief explanation regarding which one, Mahashweta Devi. Okay फ्रेंड्स, ये जो महाश्वेता देवी हैं, ये 1926 टू 2016 इनका टाइमलाइन है महाश्वेता देवी का। ये प्रोफेसर है और इनका प्रोफेशन है, मींस नॉट प्रोफेसर एक्चुअली, इनका प्रोफेशन है राइटर, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एडिटर हैं। नाउ शी रॉट प्राइमरली इन बंगाली, प्लीज़ कीप इन योर माइंड, राइटिंग अबाउट ट्रिबल्स, दलित और मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है उनके बारे में शी टॉक्स इन हर राइटिंग। और 1084 माँ, मदर ऑफ 1084, दिस इज इम्पॉर्टेंट स्टोरी है ऑफ अ मदर जो ग्रैप हो जाती है विद द डेथ ऑफ हर नेक्साइल्ड सन के थ्रू, राइट। आपको इसे बहुत ध्यान से स्टडी करना है। मदर ऑफ 1084, 1974 इसका पब्लिकेशन है। नाउ वी विल एंड दिस वीडियो with this note, guys. If you really want or have this list you have in a paper forms, then you will have to join the membership and just revise all the text जो आपके इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में पूछे जा सकते हैं, can be asked or have been asked in your examination, past papers, these all included in this particular list. इस तरह से अभी मैं आपको सेम ऑन ब्रिटिश लिटरेचर के क्लासिकल जितना भी टेक्स्ट है टू मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, जितना भी टेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है उसकी भी मैं लिस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। आई विल प्रोवाइड you before your examination. Stay tuned with this channel. It really gives you solid revision for your upcoming UGC NET English exam. Bye bye friends. Like ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को. If you not subscribe and you are watching my video, then please subscribe my channel. Bye bye.